اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب، ان کی ولادت اور ان کی شادی، ان کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرت بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، اور حضرت عدنان بن حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز و معزز چلا آتا تھا۔ نضر یا فہر کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے، اور اس سے اوپر والے کنانی کہلاتے تھے۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اور اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، ان کا حسب نسب کتنا ہی پیارا اور کتنا ہی برگزیدہ تھا۔ آپ کی ولادت جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن فجر کے وقت ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، نورانی آنکھیں، قدرت الہی سے سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدقے دل سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو ولادت کی خبر دی، تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ مطلب کہ اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو ہی آزاد کر دیا۔ پیدائش کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، اور ان کے نور سے حرم شریف کی پشت، زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ایک شام کے کیسری محل نظر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں، اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر عوض دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے نواحِ مکہ کے قبائل کی بدو عورتیں سال میں 2 دفعہ بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھی۔
चनाचे इस दफा कहत साली में हलीमा सादिया अपने कबीला की 10 औरतों के साथ इसी गरज से शहर में आई। हलीमा के साथ इसका शीर खार बच्चा अब्दुल्ला जिसका नाम था, इसका शोहर हारस बिन अब्दुल अजीज सादी, एक दराज गोश और एक ऊंटनी थी। भूख के मारे ना ऊंटनी दूध का एक कतरा देती थी और ना हलीमा की छातियों में से काफी दूध था, इसलिए बच्चा बेचैन रहता था और रात को इसके रोने के सबब से मियां बीवी सो भी ना सकते थे। अब किस्मत जागी, सुबहान अल्लाह। अब किस्मत जागी तो हलीमा को, जो शर्फ व कमाल में मशहूर थी, ऐसा मुबारक रजी मिल गया कि सारी जहमत काफूर हो गई। देखते ही दाएं छाती से लगा लिया, दूध ने जोश मारा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और बाएं छाती छोड़ दी, जिससे हलीमा के बच्चे ने दूध पिया। इसके बाद भी ऐसा ही होता रहा। ये अदल जबली का नतीजा था। डेरे पर पहुंची तो फिर दोनों बच्चों ने खूब शेर होकर दूध पिया। हारस ने उठकर ऊंटनी को जो देखा तो इसमें भी दूध उतर आया। फिर दोनों मियां बीवी ने खूब शेर होकर ऊंटनी का दूध पिया और इस तरह 3 रातें मक्का में ही गुजर गईं। हजरत आमना को अलविदा किया और हलीमा अपने कबीले को आई। इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दराज गोश पर सवार कर लिया और दराज गोश ने पहले काबा की तरफ 3 सजदे करके सर आसमान की तरफ उठाया, गोया के शुक्रिया अदा किया। इससे ये खिदमत ली गई, फिर रवाना हुई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ऐसी चुस्त और चालाक बन गई कि काफिला के सब चौपाइयों से आगे चल रही थी। हालांकि जब आई तो कमजोरी के सबब वो सबसे पीछे चल रही थी। साथ की औरतें हैरान होकर पूछती थी कि ए हलीमा, ये वही दराज गोश है? हलीमा जवाब देती, वल्लाह ये वही है। बनु साद में इस वक्त सख्त कैद था, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हलीमा के मवेशी शेर होकर आते और खूब दूध देते और दूसरों के मवेशी भूखे आते और वो ना दूध का एक कतरा भी देते। इस तरह हलीमा की सब तंग दस्ती दूर हो गई। हलीमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूर जगह ना जाने देती थी। एक रोज वो गाफिल हो गई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई बहन शीमा के साथ दोपहर के वक्त बेड़ों के रेवड़ में तशरीफ ले गए। माई हलीमा तलाशी में निकली और आपको शीमा के साथ पाया। कहने लगी, ऐसी तपश में क्या कर रही हो? शीमा बोली, अम्मा जान, मेरे भाई ने तपश महसूस नहीं की। बादल आप पर साया करता था। जब आप ठहर जाते तो बादल भी ठहर जाता और जब आप चलते तो बादल भी चलता। यही हाल रहा यहाँ तक कि हम इस जगह आ पहुंचे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो माई हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और आपको आपकी वालदा के पास लेकर आई और कहा, काश ए आमना, तू अपने बेटे को मेरे पास और रहने दे ताकि मोटा ताजा हो जाए, क्योंकि मुझे इस पर वबाए मक्का का डर है। ये सुनकर बीबी आमना ने आपको हलीमा के साथ वापस कर दिया। हलीमा का बयान है कि हमें वापस आए 2 या 3 महीने गुजरे थे कि एक रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के साथ हमारे घरों के पीछे हमारी बेड़ों में थे कि आपका भाई दौड़ता हुआ आया। कहने लगा, मेरे इस कुरैशी भाई के पास 2 शख्स आए जिन पर सफेद कपड़े हैं। उन्होंने पहलू के बल लटाकर इसका पेट फाड़ दिया है। ये सुनकर मैं और मेरा खामद दौड़े, देखा कि आप खड़े हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है। हम दोनों आपके गले लिपट गए और पूछा, बेटा तुझे क्या हुआ? आपने बयान किया कि 2 शख्स मेरे पास आए जिन पर सफेद कपड़े थे। उन्होंने पहलू के बल लटाकर मेरा पेट फाड़ दिया और इसमें से एक खून की फुटकी निकाल कर कहा, ये तुझसे शैतान का हिस्सा है। फिर इसे ईमान और हिकमत से भर कर सी दिया। बस हम आपको अपने खेमा में ले आए। मेरे खामद ने कहा, हलीमा, मुझे डर है कि इस लड़के को कुछ असेब है। असेब ज़ाहिर होने से पहले ही इसे इसके कुंबे में वापस कर दो। वाज़े रहे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
शिक्के सदर 4 मरतबा हुआ है। एक वो जिसका जिक्र अभी मैंने किया है, इसके वास्ते था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसावस शैतान से जिनमें बच्चे मुब्तला हुआ करते हैं महफूज रहें और बचपन ही से इखलाक हमीदा पर परवरिश पाएं। दूसरी मरतबा जब आपकी उम्र 10 बरस की हुई तो आप कामल तरीन औसाफ पर जवान हूं, उस वक्त भी आपका सदरे शिकन हुआ। तीसरी मरतबा गारे हिरा में बैसत के वक्त हुआ ताकि आप वही के बोझ को बर्दाश्त कर सकें। और चौथी मरतबा शब मिराज में हुआ ताकि आप मनाजात इलाही के लिए तैयार हो जाएं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालदा आपको साथ लेकर मदीना में आपके दादा के ननहाल बनु अदी बिन नजार में मिलने गईं। बाज कहते हैं कि आपने शोहर की कब्र की जियारत के लिए गई थी। उम्मे ऐमन भी साथ थी। जब वापस आई तो रास्ते में मकाम अबवा में इंतकाल फरमा गई और वहीं दफन हुई। उम्मे ऐमन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में लाईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। अब्दुल मुत्तलिब आपकी परवरिश करते रहे, मगर जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो इसने भी वफात पाई और हस्ब वसीयत आपके चचा अबू तालब जो हजरत अली के बाप और आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला के माँ जाया बाई थे, आपकी तरबियत का कफील हुए और अबू तालब ने आपकी कफालत को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया और आपको अपनी जात और बेटों पर मुकद्दम रखा, मतलब उनमें कोई फर्क ना किया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की हुई तो अबू तालब हस्बे ममूल काफिला कुरैश के साथ बगर्जे तिजारत मुल्क शाम को जाने लगे। ये देखकर आप इससे निपट गए, इसलिए इसने आपको भी साथ ले लिया। जब काफिला शहर बसरा में पहुंचा तो वहां बहेरा राहब ने आपको देखकर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये सारे जहान का सरदार है, रब्बुल आलमीन का रसूल है, अल्लाह इसको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। कुरैशियों ने पूछा, तुझे ये क्यों कर मालूम हुआ? उसने कहा कि जिस वक्त तुम लोग घाटी से चढ़े कोई दरख्त और पत्थर बाकी ना था जो सजदे में नहीं गिरा हुआ था। दरख्त और पत्थर पैगंबर के सिवा किसी दूसरे शख्स को सजदा नहीं करते और मैं इनको मोहर नबूवत से भी पहचानता हूं जो इनके शाने की हड्डी के नीचे सेब की मानिंद नजर आ रही है। शादी के वक्त इनकी उम्र 40 साल थी। हजरत अबू तालब के निकाह का खुतबा पड़ा और 500 दिरहम महर करार पाया। ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी। हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शादियां और की और तमाम अज़वाज मुतहरात का महर 500 दिरहम ही मुकर्रर हुआ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हजरत खदीजा ही के बतन से हुई। सिर्फ एक साहबजादे जिनका नाम इब्राहिम था, हजरत मारिया कब्तिया के बतन से, जो सन 8 हिजरी में पैदा हुए और 10 हिजरी में इंतकाल फरमा गए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में सीरत नबी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पक्का और सच्चा आशिके रसूल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।